Hi students, welcome back you all. Welcome to my channel Literature Ocean. My name is Sakshi Sharma. I am lecturer in English. My hobbies are reading, writing poetry and interacting with people. So let's begin. So today we are gonna talk about Arundhati Roy. So Arundhati Roy born in 1961 and she is still alive. So if we talk about Arundhati Roy, so she is best known for her work God of Small Things, for which she won the Man Booker Prize for Fiction in 1997. I want to mention date here. Sorry, here. So Arundhati Roy won Man Booker Prize for Fiction in 1997. So she is also a political activist involved in human rights and environmental causes. So this is a picture of Arundhati Roy. You can refer her picture also. So these are some important things which you need to understand about Arundhati Roy. I didn't go in detail. Reason is this because if any question will come from Arundhati Roy, so it will become in the form of her works, not in these kind of things, biography and all. Okay, so let's start. So today we are going to talk about her most important work which won the Man Booker Prize in 1997. That is The God of Small Things. If we talk about The God of Small Things, this is a debut novel and about the childhood experiences of fraternal twins named Rahel and Esteban. इसको हम एस्था भी बोलते हैं. So this is a story of one family in the town of Amanan in Kerala, India. This novel won Booker Prize in 1997. The story moves in past and present, so like there are flashbacks in the story. The main characters are Mamachi, Papachi, Amu, Estha, Rahel, Babu, Sophie Mall, Chaco, Baby Kochama, Velutha, Margaret Kochama. So these are some major characters which are there in the story. I didn't take up the minor character. The reason is this because if any question will come, it will come only from these characters only. So if I talk about the last year's question paper, so I have noticed that there was a question that Velutha is a character in which of the story, and they have given you the four options and you need to choose from those options. So Velutha is a character in The God of Small Things. So this is the answer. So let's I want to tell you about the main places of the story. Okay, so the main places, if I talk about, so Amanan is the first place. So Amanan is a village in Kerala, so I have already told you where the story moves. Okay, it's Kerala. So there is a place called Paradise. It's not a place, it's a kind of business. Paradise Pickles is a kind of factory which this family has. Paradise Pickles. So the next is The Sound of Music, where Rahul and Esther used to spend their time. So the story is about the journey of both brother and sister Esther and Rahul. So ये सारी story इनकी journey के बारे में है, Esther and Rahul की और उनकी mother अमू की, जिसकी 31 year old तक होते होते death हो जाती है. पूरी story है जो वो events में happen होती है. 1961 का एक event ले रहे हैं और एक 1993 का. Like story कभी this is past and this is present. सो स्टोरी कभी पास्ट में जा रही है, कभी वापस आ रही है प्रेजेंट में, फिर पास्ट में जा रही है, फिर वापस आ रही है. सो ऐसी प्रोसेसिंग चल रही है, बट मोस्टली 1969 की ही बात की गई है स्टोरी में. सो मेनली होता क्या है कि ट्विंस होते हैं एस्था एंड राहुल, और वो दोनों अपनी मदर के साथ रहते हैं, अमू के साथ जिसका डिवोर्स हो गया है बाबू के साथ. सो बाबू जो है वो एस्था एंड राहुल का फादर है, जिसके साथ अमू का ब्रेकअप हो गया. लाइक उनकी मैरिज टूट गई है. रीज़न ये है कि बाबू ने एक बार क्या किया, उसने मतलब वो बहुत मारता था, अल्कोहलिक था और बहुत ज़्यादा
अमू को टॉर्चर करता था, जिसकी वजह से अमू ने उससे डाइवोर्स ले लिया। देन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट कि अमू को बिल्कुल पसंद नहीं होता ऐसे बंदे के साथ रहना, बट फिर भी वो अपने बच्चों की वजह से एडजस्ट करती रहती है। बट हद तब हो जाती है जब बाबू कहता है अमू को कि वो जाकर उसके बॉस के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाए। इससे अमू का जो गुस्सा होता है वो बहुत पीक पे चला जाता है एंड शी डिसाइडेड टू मूव ऑन एंड वो वहाँ से चली जाती है, उसको डाइवोर्स दे देती है, अपने घर आ जाती है आयमनन इन केरला में। सो दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट बब्बू, अमू एंड राहुल एंड एस्थेपा। सो जो सोफ़ी मॉल है, सोफ़ी मॉल जो है, इट्स अनदर स्टोरी अबाउट सोफ़ी मॉल। सोफ़ी मॉल चाको और मार्गरेट कोचामा की बेटी है, डॉटर है। सो होता क्या है, एक फैमिली है, देर इज़ अ फैमिली एंड उस फैमिली में दो मेंबर्स हैं, टू मेंबर्स आर देयर, वन इज़ पापाची एंड द अनदर वन इज़ मामाची। पापाची और मामाची। मामाची जो हैं वो अमू और चाकू की मदर है और पापाची जो हैं वो अमू और चाकू के फादर हैं। सो होता क्या है, मामा जी को पापा जी बहुत परेशान करते हैं, लाइक वो भी अल्कोहलिक हैं एंड उनको पीटते बहुत हैं, मारते रहते हैं। बट चाकू अपनी मदर की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, उसको हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है जब वो बड़ा हो जाता है। सो होता ये है कि पापा जी की एक डेथ हो जाती है ऐसे करते करते। मामा जी जो हैं अभी अपने घर में चाकू के साथ, बेबी को चामा के साथ, इनके साथ रहती हैं और अमू भी उनके साथ है। अमू की मैरिज हो जाती है बब्बू के साथ, जो डाइवोर्स हो जाता है, उसके बच्चे भी हैं दो, बट डाइवोर्स जल्दी हो जाता है, जो मैंने आपको बताया था रीज़न क्या है। चाको की मैरिज हो जाती है मार्गरेट कोचामा के साथ अमेरिका में, यूएसए में, बट जल्दी ही उनका भी डाइवोर्स हो जाता है बिकॉज मार्गरेट और चाकू के जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपस में मिलते नहीं है। उनकी बेटी है सोफी मोल। मार्गरेट का एक जोए नाम के मैन से शादी हो जाती है, बट बहुत जल्दी जोई की डेथ हो जाती है। फिर जो चाको होता है वो मार्गरेट अपनी बेटी को, सोफ़ी मोल को बुलाता है, दोनों को बुलाता है कि वो आकर रहें अपने घर में, जो कि एमनम है, एमनम के विलेज में है केरला में। वो आ जाते हैं दोनों वहीं पे एक बार क्या होता है, सोफ़ी मॉल जो हैं वो बोट में अमू के साथ एंड एस्था के साथ जा रही होती है और एकदम से वो डूब जाती है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। सोफ़ी मॉल की डेथ हो गई है स्टोरी में। देन क्या होता है कि साउंड ऑफ म्यूज़िक की, ये सारी पास्ट की बातें हम कर रहे हैं, जैसे जैसे राहुल और एस्था ने अपना 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 जो ज़िंदगी एक दूसरे के साथ शेयर की है, लाइफ मेमोरीज शेयर की हैं। साउंड ऑफ म्यूज़िक वो प्लेस है जहाँ पे एस्था एंड राहुल यूज टू स्पेंड टाइम टुगेदर। एंड होता क्या है उसके बाद, अगर हम बात करें कि जब सोफ़ी मॉल की डेथ हो जाती है तो सोफ़ी मॉल, अमू जो है सोफ़ी मॉल के घर में मतलब जाते हैं, उनको टेक केयर वगैरह करते हैं, तो वहीं पे वेलुथा के साथ उनकी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। वेलुथा एक अनटचेबल है जिससे अमू को प्यार हो गया है। जब बेबी को चामा को इस बारे में पता चलता है, बेबी को चामा और मामा जी को ये पसंद नहीं होता कि वो एक अनटचेबल से प्यार करती है। देन बेबी को चामा एंड वेलुथा क्या करते हैं, बेबी को चामा एंड वेलुथा बेबी को चामा और मामा जी क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि वेलुथा जो हैं वो उनको किसी ना किसी तरीके से उनकी लाइफ से दूर किया जाए। तो वो उसके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा देते हैं कि उसने अमू को रेप किया है। एस्था को भी सिखा देते हैं कि तो गलत बोल दे। फिर एस्था को सिखा देते हैं कि उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दो कि सोफ़ी मॉल की डेथ जो है वो वेलुथा की वजह से हुई है, वेलुथा ने मारा है। थॉमस जो है वहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर है, जिसके सामने वो प्रूफ कर देते हैं कि वेलुथा जो है वो एक गलत इंसान है। तो ऐसे ऐसे स्टोरी जो है वो आगे आगे बढ़ती रहती है। एट लास्ट में क्या होता है, 23 ईयर्स का डिफरेंस हो गया है, क्योंकि अमू जो है, अमू की शादी उसके बाद एक और बंदे से भी हो जाती है, हिंदू बंदे के साथ, बट उसके साथ भी उसकी कुछ ज़्यादा पटती नहीं है, फिर वो वेलुथा के प्यार में पड़ जाती है। तो होता क्या है कि एस्था जो है, एस्था इज़ अ बॉय एंड राहिल इज़ अ गर्ल। एस्था जो है वो बाबू के साथ चला गया आसाम, अपने फादर के साथ रह रहा है, और राहिल अपनी मदर अम्मू के साथ रह रही है। और राहिल की मैरिज अमेरिका में एक बंदे के साथ हो जाती है
और उसी के साथ वो रहती है, बट उसकी शादी भी ज़्यादा टिक नहीं पाती है। जब उसे पता चलता है कि उसका भाई जो है वो वापस आया है वही जगह पे, तो लाइक यहाँ पे एमनम में, केरला में, तो वो वापस उसे मिलने जाती है अपने भाई को। और वहाँ दोनों भाई बहन फिर से इकट्ठे होते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं जुलते हैं। बस ये स्टोरी है कि कैसे वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, कैसे फिर वो किस पॉइंट पे आके मिलते हैं दोनों, कैसे कैसे ये सब कुछ होता है। बस यही स्टोरी है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की। थोड़ी अटपटी सी स्टोरी है, थोड़ा सा लाइक कैरेक्टर्स भी शफल हो जाते हैं इधर उधर, स्टोरी क्योंकि चलती रहती है। दिस इज़ अ स्टोरी। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़िए। मैं तो कहूँगी आप थोड़ा सा इसको समराइज़ भी कर लीजिए, बिकॉज इम्पॉर्टेंट है। कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपको मेनली, या बुकर प्राइज़ कब मिला इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। मेन मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं राहल और एस्तेर के बारे में, बाकी हम देखते हैं। थैंक यू सो मच, दिस इज़ इट फॉर टुडे। ओके, विल मीट सून, तब के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।